میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بات کر رہے تھے جی کیا ملک ترقی کرے گا, معیشت مضبوط ہوگی تو خود بخود کراچی بھی ترقی کرے گا. حسان صابر صاحب یہ بات کر رہے ہیں, فاروق راڈی صاحب بھی, کہ معیشت مضبوط ہوگی, ملک ترقی کرے گا تو کراچی والوں کو بھی اس کا بینیفٹ ملے گا. آپ یہ نہ سمجھیں کہ مردم شماری کے حوالے سے ایک فیصلہ جو ہوا ہے وہ ظاہر ہے تو غلط فیصلہ, لیکن ختم نہیں ہوگی زندگی. وہ کہتے ہیں اس کے باوجود بھی ملک ترقی بھی کرے گا, کراچی پہ توجہ بھی وزیر اعظم صاحب دیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ باقی باتیں جتنی بھی کی ہیں فاروق راڈی صاحب نے وہ تو درست ہیں, ملک ترقی بھی کر رہا ہے, سب کچھ ہے, اب کراچی والوں کو انشاءاللہ اس کا ثواب بھی ملنا شروع ہو جائے گا. ملک کو ترقی کرنی چاہیے. میں اس ملک کا شہری ہوں, میری تمام تر محبتیں, عقیدتیں, لائلٹیز اس ملک کے ساتھ ہیں. میں اس ملک کا باشندہ ہوں. یہ ملک کو ترقی کرنی چاہیے. میں اس بات کا بالکل حامی ہوں کہ اس ملک کے اندر جو کرپشن, جو لوٹ مار, جو موروثی سیاست پچھلے 72 سال سے 70 سال سے رائج ہے, کیونکہ 2-3 سال تو آپ نکال سکتے ہیں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے, اور وہ ان کے بعد کا کچھ خان صاحب کو نکال دیں, ٹھیک ہے جی. لیکن جو 70 سال کا جو عرصہ ہے جس میں اس کے بعد جو پنپنا شروع ہوئی یہاں کی پولیٹکس اور یہاں کی سیاست کو جو رنگ دیے گئے, اس نے اس ملک کو, یہ تو اللہ کا بڑا کرم ہے اور اچھے لوگ بڑی تعداد میں موجود ہیں کہ اس ملک کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہوا ہے, پھر بھی محفوظ رکھا ہوا ہے. لیکن اس کو کسی نہ کسی طور پر صحیح ٹریک پر آنا چاہیے. پی ٹی آئی محنت کر رہی ہے, آبویسلی کرنا چاہیے, لیکن کراچی کے ایشو پہ کوئی محنت نہیں ہے. 14 میں ایم این اے کا میں سر سے ریکویسٹ کر رہا تھا کہ 14 ایم این اے میں سے کسی نے نہیں کیا. آپ نے ایم کیو ایم کی بات کی, اختلافی نوٹ کی, وہ تو اختلافی نوٹ لکھ کے جو ہے وہ اپنے گھروں کو آ گئے, انہوں نے بولا بھائی ہماری نہیں سن رہے, تو وہ مثال ایسی ہو گئی. ٹھیک ہے جی, وفاقی حکومت کے بہت سارے اچھے اقدامات ہیں جن کی وجہ سے پاکستان ترقی کرے گا, لیکن کراچی میں ترقی ہوتے ہوئے نظر آنا کب سے شروع ہوگی؟ دیکھیں, میں بہت آپٹیمسٹک ہوں کہ یہ ملک ترقی کرے گا, کراچی بھی ترقی کرے گا, ٹھیک ہے نا. اور کراچی کے لوگوں نے پچھلے الیکشن کے اندر پیپلز پارٹی کو مسترد کر دیا, یہاں تک کہ لیاری تک سے بھٹو صاحب نے کہا تھا جس دن لیاری میں ہم ہار گئے اس دن پیپلز پارٹی ختم ہو جائے گی. سر مسترد کر دیا تو پھر بہت ساری جماعتیں ہیں نا, پی ایس پی کو ووٹ نہیں ملے, اگر سیٹیں نہیں ملی ہم کہیں مسترد کر دیا. دیکھیں, مصطفیٰ کمال نے اپنے دور میں بہت اچھا کام کیا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور ان کی جو کاوشیں تھی, لیکن تو آپ کو پتا ہے ڈکٹیٹر کے طور پہ وہ جب لندن چلے گئے تو ڈکٹیٹرشپ کہاں نہیں ہے, کس پارٹی میں نہیں ہے؟ سر ہر جگہ ہے. آپ دیکھیں ایوری ویڈنسڈے کو جب کیبنٹ کی میٹنگ ہوتی ہے اسلام آباد میں, تو وہاں پہ جو ڈیبیٹ چلتی ہے, کیا مجال ہے کہ کوئی زرداری صاحب کے سامنے کوئی ایک لفظ بول سکے یا نواز شریف سے کوئی اختلاف کر سکے؟ یہاں پہ پی ٹی آئی کی جو کیبنٹ کی میٹنگ ہوتی ہے وہاں گھنٹوں تک ڈیبیٹ چل رہی ہوتی ہے, اور ڈیبیٹ کے بعد رزلٹ کیا نکلتا ہے سر؟ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے جمہوری طریقہ تو ہے, عمل درآمد کیوں نہیں ہوتا؟ ایک ڈکٹیٹر کی بات ہو رہی تو عمران خان ہر ایک کی بات کو سنتے ہیں, ہر ایک کی پرفارمنس دیکھتے ہیں اور اس پہ بات چلتی ہے. اور اس وقت جو ملک ابھی ہمارا کراچی کی طرف کیوں نہیں دیکھ رہے سر؟ دیکھیں کراچی کی طرف بھی جو ہمارا پرابلم ہی ہے کہ کراچی میں جو حکومت جو ہے 1100 ارب روپے کب ملیں پارٹی کی ہے. کیا 1100 ارب روپے کب ملیں گے سر؟ بھائی 1100 ارب روپے پہ تو آگے کس کو دیں گے؟ سندھ گورنمنٹ کو دیں گے. تو پھر اس وقت سوچا نہیں تھا جب بتا, یہ بات بھی تو ہے نا, پیسہ سندھ گورنمنٹ کے پاس آئے گا, تو پھر اس وقت اس کا کیا حل ہے؟ اب آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے کہ یہ تمام پیسے اگر دے بھی دیے جائیں تو خرچ نہیں ہوں گے, کراچی پہ خرچ نہیں ہوں گے, پیپلز پارٹی والے نہیں خرچ کریں گے. پہلے بھی اس کا مجھے خرچ بتایا نا, 5,500 ارب روپے 8 سال میں ہیلتھ سیکٹر میں دیے گئے. تو آپ بھی تو بتائیں سر, 90 بلین کراچی کو پھر کس طرح ترقی دے سکیں گے؟ 90 بلین آپ نے لاڑکانہ کی مد میں لیے ہیں, 90 ارب روپے. حکومت سے ڈر خوف ہے, آپ کو پیسہ براہ راست نہیں دے سکتے, تو پھر کراچی پہ خرچ کس طرح کریں گے آپ؟ ڈائریکٹ وہ خود ہی کریں گے, کیوں نہیں کس قانون کے تحت کریں گے؟ یہی تو بات ہے. ابھی آپ خود کہہ رہے ہیں 18ویں ترمیم میں پروونس کو دینا ہے پیسہ. اچھا اب آپ کی کمیٹی ہوتی ہے نا, پرائم منسٹر صاحب نے آج سے 1 مہینہ پہلے فرمایا پریس کانفرنس میں. سر یہ ہمارا کراچی کے جو بچے ہیں وہ بھی تو دیکھتے ہیں نا کہ وہاں اورنج ٹرین چل رہی ہے, میٹرو چل رہی ہے, ہم چنچی میں گھوم رہے ہیں, ہم چنچی میں گھوم رہے ہیں. یہ آئی ایم سوری ٹو سے یہ اورنج ٹرین اور یہ جو ہے نا, اس نے ہماری اکانومی کا بیڑا غرق کر دیا ہے. سر کیوں بنائی پشاور میں پھر آپ نے؟ کیونکہ انہوں نے پشاور میں کیوں بنائی سر؟
मजबूरी थी ना, पब्लिक डिमांड की वजह यहाँ से। क्यों नहीं मजबूरी? यहाँ पब्लिक मजबूरी डिमांड नहीं है अब यहाँ पे। पे भी अच्छा, मुझे ये बताया सिंध गवर्नमेंट ने अब तक कितनी बसें चलाई? एक भी एक गवर्नमेंट की बस नजर आती है यही आपको तो मैं रोड पे? पूछ रहा हूँ आपसे सर, सिंध गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर रही, अब लोग वफाक की जानिब देख रहे हैं। भाई तो लोग इमरान खान को इसलिए लेकर आए तो- थे कि कराची के मसाइल हल होंगे, कराची से वोट दिए, जिस तरह हसन साहब नहीं, ने कैसे कहा, करेंगे भाई? इमरान खान साहब कराची से भी जीते थे। सारे कंट्रोल अगर पीपल्स पार्टी के हाथ में है और वो कराची को बिल्कुल सर, जाम इमरान हो साहब गया ने है, अगर सब कुछ पीछे नहीं रखा किया हुआ है। कराची के लिए, तो फिर चॉइस क्या रह जाती है मुस्तफा कमाल के अलावा? बताएं आप। नहीं, देखिए मकसद आपका ये कि मुस्तफा कमाल ही इसके बात कराची के हवाले से इस वक्त कौन कर रहा है? कराची के नुमाइंदे तो नहीं कर रहे। मेरा ख्याल है तकरीबन तमाम पीटीआई नहीं कर रही है सर को खलवतों में करते हो। मैंने पीटीआई मेरे ख्याल से हर प्लेटफॉर्म पे उन्होंने कराची की बात की और कर रहे हैं, और बाकायदा इन चीजों के ऊपर वो काम भी कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि आप एक जगह पे आके मजबूर हो जाते हैं। ये कौन सी यही तो अब दोनों जानना चाह रहा हूं, आप दोनों माशाल्लाह इतने कामयाब है अपनी जिंदगी में, लोगों को समझाएं तो सही कि अब फिर हल क्या रह गया है? देखिए मैं तो आपको सब मुंसिफाना अगर- मर्दम मैं तो कह रहा हूं, शुमारी अगर होगी, मजबूर है तो ये बता तो अच्छा सीट छोड़ आप दें। सर आप ये अल्लाह बताएं, को जवाब देना सर, है, छोड़ दें, मुंसिफाना रिजाइन कर मर्दम दें। शुमारी कौन के लिए छोड़ेगा? आप छोड़ें, वफाक वो मजबूर को है। किस तरह मजबूर करेंगे मुंसिफाना मर्दम शुमारी दोबारा कराने पे? देखिए, आप- हम- क्या आपके पास इसका लाएवल तरतीब दिया हुआ है आपने? हमने लाएमल देखे, हमने 2018 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की, और जिसके तहत हमने अदालत में ये गुजारिश की कि ये सेंसस ठीक नहीं हुआ है, इसको कलअदम करार दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया कि क्योंकि ये सेंसस से रिलेटेड इश्यूज पहले सेंसस कमीशन के पास जाएंगे। हमने उनसे गुजारिश की कि सेंसस कमीशन अभी फॉर्म नहीं हुआ। उनका जी ठीक है, अभी फॉर्म हो जाएगा, हम ऑर्डर किए देते हैं। उन्होंने ऑर्डर कर दिया कि सेंसस कमीशन फॉर्म किया जाए और इसको एनलिस्ट कर दिया जाए। आज 2021 है, 2018 के बाद से 21 तक आ गए। अगर फेडरल गवर्नमेंट को भी ये एहसास होता, देखिए मैं तो कह रहा हूं उनकी एक जुम्बिश कलम है, उनको कमीशन की जरूरत नहीं। अगर वो दर्द रखते हैं कि कराची के साथ नाइंसाफी हुई, जो उन्होंने अपने इलेक्शन में कहा अब था, तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में बात आ गई ना वो सर, कर दे। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, इसका मतलब है नहीं, फिर- सुप्रीम कोर्ट ने हमारी पिटीशन को ये कहकर हमें रिटर्न किया है कि आप सेंसस कमीशन अच्छा, में जाएं। एक तरफ तो आप ये अब बात फिर कर रहे हैं प्राइम हसन मिनिस्टर साहब, साहब, दूसरी मेरी तरफ गुजारिश, सर, एक लाइन जिमनी सवाल, एक तरफ तो आप कह रहे हैं जी मुंसिफाना नई मर्दमशुमारी होनी चाहिए, पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं जी बल्दियाती इंतखाबात भी हम जब ही कराएंगे जब मुंसिफाना मर्दमशुमारी जी, बिल्कुल होगी। ऐसे, हाँ। तो ये तो आपने रास्ता नहीं रोक दिया नहीं, बल्दियाती नहीं, इलेक्शन नहीं, का। मैं गुजारिश कर आपके देता हाथ में हूं, इसके- शॉर्ट उसमें कोशिश कर देता हूं। तो अगर फेडरल गवर्नमेंट को ये एहसास है कराची का, वो एक जुम्बिश कलम से कर दें कि जी ये कराची का सेंसस सिर्फ कर दें, थर्ड पार्टी ऑडिट 5% के ऊपर कर दें, ठीक हो गया, मसला बेहतर हो जाएगा। अच्छा, नहीं हो रहा आपसे, आप इसको होल्ड कर लीजिए, इसको होल्ड कर लीजिए, जैसे आप 2.5 साल से होल्ड कर रहे थे, आपने अप्रूवल नहीं दिया था, आप अभी भी अप्रूवल ना दीजिए। हम तो ये कह रहे हैं, हम उसको ऑल्टरनेट कह रहे हैं कि आप होल्ड ना करें, इसी 1,70,00,000 पे होल्ड कर लीजिए, इसको मत कीजिए अप्रूव, इसको डिस्कस कर लें, इसको कमीशन में जाने दें, इसको थर्ड पार्टी ऑडिट होने दें। आपको तो जल्दबाजी हो रही है इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट को। अब क्या हो रहा है कि ये जो बात आपकी है, जल्दबाजी क्यों है? मैं गुजारिश कर रहा हूं, क्या वजह है? वो ये वजह आ रही है कि इनको बल्दियाती इंतखाबात, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनको ये हुक्म दिया है कि केपी में, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगा केपी का इलेक्शन चैलेंज हुआ है कि अभी तक वहां नहीं हो, 57,000 काउंसलर पंजाब पूरे प्रोविंस से उन्होंने फारिग कर दिए। बल्दियाती निजाम फारिग हो गया, बल्दियाती निजाम ये भी नहीं लेके आ रहे, वहां पे केपी में नहीं लेके आ रहे, बलूचिस्तान में नहीं कराएंगे, कैसे लाए? क्यों नहीं लेके आ रहे? वो एडमिनिस्ट्रेटर के जरिए चला रहे हैं, बदयांती समझ रहे हैं कोविड का जी, लोकल गवर्नमेंट सब बदयांती समझ रहे हैं, नियत पे बिल्कुल शक कर मैं रहे कह रहा हैं। हूं ना लिए। देखिए आइन के अंदर दर्ज है 3 tiers ऑफ गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट के ऊपर हमेशा अताव रहा लोकल गवर्नमेंट, जो लोगों के काम करने के लिए बनाई गई है। मतलब हल जो है ग्राउंड लोकल लेवल के गवर्नमेंट है। ऊपर, ग्राउंड बिल्कुल हल है, इसलिए क्योंकि काम देखें, ये सड़क बनाना, लोकल गवर्नमेंट फोकस सड़क कर रहे हैं बनाना, सर, आप गटर लोग खुलवाना एमएनए का काम है क्या? एमपी उनका काम लेजिस्लेशन करना है, आइन में कानून साजी, जाहिर है कानून साजी करें, वहां जाके डिबेट करें। आप ठीक सर है? कह रहे थे कि लेकिन नुमाइंदे मोहल्ले का काम कर काम रहे हैं, अब करना अपने गली कानून का मोहल्लों काम में। है। देखिए ये आप सही कह खुद रहे ही हैं। ये कह रहे हैं कि एमएनए का काम जो लेजिस्लेशन है, बिल्कुल, ठीक है ना? हाँ। और यकीनन देखिए इमरान खान जो है प्राइम मिनिस्टर, अगर वो कोई अपनी कैबिनेट के साथ, ये सिंपल मेजॉरिटी से ये नहीं होगा। आपने देखिए जो भी चीज़, अगर एक बिल अगर आपका यहाँ से पास होता है, नेशनल असेंबली से सेनेट वाले उसे रिजेक्ट कर देते हैं। जब तक दोनों ऐवानों में बिल नहीं पास होगा तब तक आपकी लेजिस्लेशन नहीं हो सकती, ठीक है ना? तो यही प्रॉब्लम है। आज इनको पकड़ते हैं, उनको कोर्ट जो होती है वो उनको स्टे ऑर्डर दे देती है,
ठीक है ना, इनसे रिकवरी नहीं हो रही इसलिए कि आपके पास वो कानून मौजूद नहीं है। जब तक सेनेट में और नेशनल असेंबली में दोनों से अक्सरियत हासिल नहीं होगी इस गवर्नमेंट को, लेजिस्लेशन उसी वक्त हो सकती है जब तक कि दोनों ऐवान से बिल पास हो। आज आप मेरा मसला ही नहीं है ये वाला, नहीं सेंसस के ऊपर बात हो रही है, सेंसस की बात सेंसस भी तो है, वो कह रहे हैं फिलहाल तो सेनेट से मंजूर नहीं हो सकता। कोई बिल पास कराना है ऑर्डिनेंस से करा तो रहे, चला रहे हैं मुल्क को ऑर्डिनेंस के मौजूद है। मैं सेंसस पे बात कर रहा हूँ कि सेंसस के लिए क्या प्राइम मिनिस्टर का एक जुम्मे उसको सेनेट में थोड़ी पेश होना है, नहीं ये बात सेंसस का रिपोर्ट नहीं पेश होनी। जुम्बिश कलम से काम तो हो सकता है कराची का, अगर दर्द रखते हैं कराची का तो नहीं, हल नहीं है इसके दर्द है। और मैं समझता हूँ कि जो भी मरकजी चलिए इसको हटा के सर हल बता दें ना, मैं चाहता हूँ प्रोग्राम के आखिर देखिए मैं इसका हल भाई ना मर्दमशुमारी हो दोबारा, लेकिन हल बता दें, कराची तरक्की करता रहे लोग। देखिए दोनों ऐवान, सेनेट और नेशनल असेंबली दोनों जगह से जब बिल पास होंगे तभी आपकी लेजिस्लेशन हो सकती है। आप अगर नेशनल असेंबली से एक बिल पास करते हैं तो दूसरे वो सेनेट से वो उड़ा दिया जाता है। अब आप देखिए जिन जिन लोगों से रिकवरी करनी थी वो लोग आज बचे हुए हैं, क्योंकि कानून जो है इन लोगों ने कानून ऐसे पहले से बनाए जिसमें इनके पास सारे लूप होल और लोग पकड़े भी जाए तो कराची का मसला तो फिर रह गया, हम तो उससे बात कर रहे हैं। देखिए ना कराची में भी मैंने आपको बताया, इसलिए कह रहा हूँ कि मर्दमशुमारी एक तरफ रख देते हैं, तो फिर आप हल बता दें कि कराची मर्दमशुमारी मुनसिफाना नहीं भी हुई तो छोड़ दें। इसके बाद इमरान खान साहब ये काम कर रहे हैं जिसकी वजह से तमाम लोगों को यहाँ रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा, पानी मिलना शुरू हो जाएगा, सेहत बेहतर हो जाएगी, तालीम बेहतर हो जाएगी। अगर गवर्नमेंट जो है सिंध गवर्नमेंट कराची के मसले हल करना नहीं चाहती, दानिस्ता तौर पे नहीं कर रही है, इसलिए कि वो लोगों को एहसास दिलाना नहीं चाह रहे हैं कि आप हमें वोट नहीं दोगे आपको कुछ नहीं। ये कराची जो है 67% रेवेन्यू जनरेट कर रहा है और दे रहा है। पाकिस्तान के बजट में सबसे ज्यादा कराची रेवेन्यू को कंट्रीब्यूट कर रहा है, इसलिए कि पोर्ट भी यहाँ पे है। लेकिन कराची के साथ जो सौतेली माँ का सलूक हमेशा से हुआ है और हो रहा है, लेकिन ये है हो रहा है, मान रहे हैं इस बात को आप? बिल्कुल हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इमरान खान से हमें पूरी उम्मीद है और वो अपनी पूरी कोशिश करे। वो कहाँ तक वो इंसान लड़े, वो एक तरफ पीडीएम वालों से बाहर से पैसे आ रहे हैं, वो आपकी बॉर्डरों के ऊपर फौजें पड़ी हुई है। आपको जो है आप देखें ना, आज आपका GF-17 वो एक्सपोर्ट हो रहा है, उसके आपको ऑर्डर्स मिल रहे। कभी जिंदगी में सुना ही आपने कि आप असला बेच रहे हैं? बेहतर होंगे जी हालात, हमारी इकोनॉमी जो है बड़ी राइट डायरेक्शन पे जा रही है। और आप देखें कि ये 2.5 साल के अंदर 20 अरब का खसारा जो वो खत्म किया गया है। और मुझे ये बताएं कि इस गवर्नमेंट ने 1 रुपया भी स्टेट बैंक से पैसा नहीं लिया, ना यहाँ पे कोई नोटें छपी है। वरना पिछली 2 गवर्नमेंटों ने क्या किया, उन लोगों ने 34 अरब से 94 बिलियन तक ले गए, डॉलर तक कर दे गए। IMF वर्ल्ड बैंक से पैसे लेते रहे, हुकूमत चलाते रहे। और आज जो महंगाई है और ये उसी का नतीजा है। बैठे हुए खजाना में चला रहे हैं। मेरा मसला आखिरी चीज सर जाते जाते आप बता दें, प्रोग्राम का बिल्कुल आखिरी 1 मिनट मेरे पास बाकी है कि सर अब आपके पास ऐसा क्या प्रोग्राम है देखिए कराची का मसला वालों को फायदा पहुंचे? कराची का मसला हल होगा, वो होगा सैयद मुस्तफा कमाल की क़यादत में। कराची के लोगों को सबसे पहले गिनवाना होगा। कराची के लोगों के मसाइल के हल हम दे रहे हैं, उनके मसाइल गिनवा के उनके मसाइल के हल हम दे रहे हैं। मुस्तफा कमाल की तमाम स्पीचेस, तमाम जलसे, तमाम ये चीज़ें गमाजी करते हैं कि कराची के अवाम मुस्तफा कमाल के साथ खड़ी है। इस संडे 17 जनवरी को हम एक अजीमुशान एहतजाजी रैली करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम अवाम को अपने साथ शामिल करेंगे। उस अवाम को जिसको इस शहर के साथ नहीं गिना गया, डिप्राइव कर दिया गया उसको गिनने से, वो अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिलीज के साथ इस एहतजाजी जुलूस में शरीक होंगे, जो इस शार फैसल के साथ, इस पूरे शार फैसल के ऊपर से जाएंगे हम कराची प्रेस क्लब तक और हम गिनवाएंगे अपने आप को। हम ये गिनवाने के लिए कर रहे हैं, हमने कोई एहतजाज जो है वो हमारा कहना चाहिए उसको वायलेंट एहतजाज नहीं है। हम एहतजाज पुरअमन करने जा रहे हैं, लेकिन हम अपने गिनवाने के लिए निकले। ये पहला मरहला है। हमने सुप्रीम कोर्ट को भी लेटर लिखा है, हमने सुप्रीम कोर्ट को लिखा है कि शो मोटो लें, जैसे ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब कराची के बहुत सारे इश्यूज के ऊपर डायरेक्शन देते हैं, इस इशू पे भी डायरेक्शन देनी चाहिए। बहुत शुक्रिया हसन साबिर साहब, फारूक राठी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन हमारा प्रोग्राम अगले प्रोग्राम तक के लिए लिसा को दी इजाजत, मौलाना की बात।